ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋਣ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਚੀ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਉਤਰੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੀਸਰੇ ਮਕਾਨ ਤੇ। ये कैसे बदबख्त भाई हैं जिन्होंने अपनी बहन को भी घर से निकाल दिया, वालिदा को भी घर से निकाल दिया, माँ किराए पे रह रही है। घर में चोरियां भी करते रहे हैं, पैसे वैसे भी अम्मी वगैरह से लेते रहे हैं। फिर जब अम्मी और फिर आपस में इन दोनों की बीवियां लड़ती थी, ये दोनों आपस में लड़ते थे। अरसा पहले घरों कढ़िया सी तुहानू 10 साल ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨੇ। की कह के कढ़िया सी घरों? ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ, ਇਸ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਦੱਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਦ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਨੂੰਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। यकीन माने मैंने बड़ी ਜਾਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਦਦੁਆ ਦੇਣੀ ਆ। इन बदबख्त बेटों ने किस कदर इस माँ को तंग कर दिया 10 साल से कि आज वो मजबूर होकर बददुआ दे रही है। वालदा को छुड़ियां तक लेके ये मारने को पड़े थे। मोहल्ले वालों ने छुड़ियां पकड़ी थी और पुलिस इमरान इंचार्ज उस वक्त सामने था, जिसके सामने ये सारी बातें हुई हैं। जब माँ का मजाक बना रहे। हाँ जी बिल्कुल। ਮਰੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਵੇਂ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ 3-4 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦੇ। ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ऐसी बदबख्त औलाद से औलाद ना होना बेहतर है। ये वो बदनसीब बदबख्त बेटे हैं जिन्होंने अपनी जन्नत उजाड़ दी महज कुछ ज़मीन के टुकड़ों के लिए। आज माँ दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। माँ को अलहदा कर दिया बाप से, वो अपने खावन से भी अलहदा नहीं और बेटों से भी अलहदा नहीं, यानी महज सिर्फ ज़मीन के टुकड़ों के लिए। वालिदा रोती रही बेटों की याद में भी, अपने खामद की याद में भी, हत्ता कि ये 4 साल हो गए हैं तकरीबन नबीना है। इन्हें नज़र नहीं आता बिल्कुल भी। हल्का सा वो नज़र आता है, वो क्या नज़र आना है। और बेशर्मी की बात है कि बच्चे अब भी इन्हें रोल रहे हैं जगह के लिए, कह रहे हैं जी ये जगह हमारी है और हमने बेच के खा जानी है, और 2 मकान बेच के खा भी गए हैं। और माँ दर बदर किराए पर धक्के खा रही है, बहन धक्के खा रही है। बहन को भी माँ का दर्जा दिया जाता है ना। अपनी बहनों का, भाई तो अपनी बहनों का एहसास करते हैं। ये कैसे बदबख्त भाई हैं जिन्होंने अपनी बहन को भी घर से निकाल दिया, वालिदा को भी घर से निकाल दिया, माँ किराए पे रह रही है। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈ ਹੋਣ, ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, 5 ਭੈਣਾਂ ਸਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਰੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋਣ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਚੀ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਉਤਰੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੀਸਰੇ ਮਕਾਨ ਤੇ। 2 ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਲਏ, ਇੱਕ ਨੇ 529 ਵੇਚਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ 530 ਵੇਚਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮਕਾਨ ਇੱਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਤੇ, ਆਂਦੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਅਵਾਰਾ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਅਵਾਰਾ। ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੁਛ, ਕਦੀ ਕੁਛ, ਝੂਠੀਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਘਰੋਂ? ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ, ਇਸ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਨੇ ਵੇਚਿਆ 2 ਮੰਜ਼ਿਲ। ਇਹ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਮਾਂ ਜੀ ਕਦੀ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੱਡੇ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਛੋਟੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 8 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਧਾ। ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਦ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਨੂੰਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਮਾਨੇ ਮੈਨੇ ਬੜੀ ਜਾਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਦਦੁਆ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਮਰ ਜਾਣ ਦੋਨੋਂ। ਆਬਦ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਮਰ ਜੇ, ਆਸਮ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਮਰ ਜੇ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਤੀਮ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਦ ਰੱਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, सारी दुनिया डगे रवा छड़िया, मैनू जलील कर चढ़िया ने। जिस कदर बदबख्तों ने तंग किया होगा, आपने देखा है कि बड़े मैंने माओ के इंटरव्यू किए हुए हैं जिनकी औलादें बड़ा बड़ा बुरा सलूक करती हैं, लेकिन मैंने माँ को खुद मुंह से कहता था कि बद्दुआ दो,
تو وہ بد دعا نہیں تھی دیتی, کہتی میری اولاد ہے. لیکن ان بدبخت بیٹوں نے کس قدر اس ماں کو تنگ کر دیا 10 سال سے کہ آج وہ مجبور ہو کے بد دعا دے رہی ہے. ماں جی جنت خراب کر لی, دنیا بناتے بناتے اپنی جنت خراب کر لی ہے, آخرت خراب کر لی ہے صرف دنیا کے چکروں میں, اور دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہونا ہے. ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਰੋਲ ਕੇ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਉਹਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੂੰ ਕੋ ਗਰਮ ਕਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਬਾਰ ਮੇਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਨਾ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟ ਲੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ ਖਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਈ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਆਖਵਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚੜਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਤੀ ਹਾਲਾਤ ਮਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦਵੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਮਰ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕਰਮਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾਟਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਵਤਰੇ ਲਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਚੜਿਆ ਕਮਾਈਆਂ करते को नहीं रोंदे फिर आवारा. 10 साल से माँ जी आपके पास रह रही है. जी मेरे पास है. आपकी हिम्मत है क्या, किस वजह से घर से इसी वजह से निकाल देता ज़मीन के लिए कि कोई और बहस भी हुई थी साथ? नहीं, ये घर में चोरियां भी करते रहे हैं. आबिद इश्तियाक जो अम्मी की जो सी दराज है बड़ा पेचकस है ना, उससे लेके ये पैसे चोरी करता रहा. छोटे ने भी जो अम्मी का कहीं जेवर वगैरह चोरी किया, तो ये घर में चोरियां भी करते रहे हैं. पैसे वैसे भी अम्मी वगैरह से लेते रहे हैं. फिर जब अम्मी और फिर आपस में इन दोनों की बीवियां लड़ती थी, ये दोनों आपस में लड़ते थे, और अम्मी जब मना करती थी तो ये अम्मी को भी बीच में जो उनसे ना टोन करते थे, लड़ाइयाँ, गलत बयानी करनी, और ये तमाशे जो उनसे घर के अंदर तक नहीं महदूद रहे. ये इस उम्र में माँ की इतनी उम्र हो गई है, माँ पे तोहमतें लगा रहे हैं. हाँ जी, वालदा के ऊपर तशद्दुद जो किया वो मोहल्ले में हुआ है, मोहल्ले वालों ने आगे होके छुड़वाया था, और वालदा को छुड़ियाँ तक लेके ये मारने को पड़े थे. मोहल्ले वालों ने छुड़ियाँ पकड़ी थी. ये जो हम आपको बातें बता रहे हैं ये घर से बाहर की हैं, मोहल्ले में 529 530 के घर के बाहर की वाक़ियात हैं. और फिर इसने आबिद इश्तियाक ने वालिद साहब को भी जिंदा जलाने की कोशिश की थी. जब वालदा को घर से बाहर निकाल दिया था तो वालिद साहब ने अपने आप को कुंडी लगा के एक कमरे में बंद किया, दीवार तोड़ के दीवार में सुराख करके इसने आग अंदर फेंकी. उस वक्त भी फायर ब्रिगेड आया, पुलिस वाले आए, लेकिन ये हमेशा अपने उल्टे कामों से बच जाते हैं. इनका दोस्त है इमरान खालिद, ये ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन में है, वो इनको हर बुरे काम से इनको बचाता है. और अभी भी उसने ही हमें जो है ना ये पुलिस स्टेशन के अंदर जो है ग्रीन टाउन में उसने ही हमें जो है ना धमकी दी थी कि ना तुसी इधर आना है, तो ना ही तुसी हुण एप्लीकेशन वाल आना है, नहीं तो तुहाडे उत्ते FIR होएगी, तुहानू उत्थे पहुंचावांगे जिथों तो तुहाडा पता भी नहीं चलेगा. अब माँ जी थाने जाती हैं, माँ जी कहते हैं मेरे बेटे सामने देख के मस्टर्डो की तरह हंसते हैं मुझे. हाँ जी बिल्कुल. और पुलिस इमरान इंचार्ज उस वक्त सामने था जिसके सामने ये सारी बातें हुई हैं, जब माँ का मजाक बना रहे. हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल. तो क्या मामला क्या है? SP सिद्रा ने मैंने सुना था आपके हक में फैसला दे दिया था, फिर भी इतना क्यों मामला लटक गया है? SP सिद्रा जो उनसी है, यकीन करें खुदा गवाह कि 4 दफ़ा हमें सुना, और 4 दफ़ा वो कहती रही है इनके ऊपर FIR होगी. हमने स्टे लगवाया था, ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते थे, उसके बावजूद कंस्ट्रक्शन जारी रखी. 15 पे भी मैंने कॉल की थी, लेकिन इनके ऊपर आज तक FIR क्यों नहीं हुई? अब तो FIR के ऑर्डर भी आ गए हैं. एडवोकेट मतीन साहब ने 4 तारीख को सबीतुल्ला जो उनसे जज साहब हैं वहाँ से उन्होंने ऑर्डर करवाए हैं FIR के, उसके बावजूद जो है ना इनके ऊपर FIR नहीं दी गई. 11 तारीख तक हमें रोज़ बुलाकर पुलिस स्टेशन बिठाया रखा गया कि जी हम आपके हक में फ़ैसला कर रहे हैं, हम किराएदार को बुला रहे हैं, माँ जी का किराया बहाल करवा रहे हैं, उनके फ़ोन बंद जा रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, दुकान बंद है, वो घर का कोई दरवाज़ा नहीं खो रहा. और 11 तारीख को हमें पता चलता है कि उन्होंने जो है हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया, हमारे ऊपर FIR ना हो, और हमारे ही खिलाफ जो है वो DIG ऑपरेशन जो है एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं पुलिस वाले. आप माँ के खिलाफ एप्लीकेशन? हाँ जी, माँ के खिलाफ एप्लीकेशन जी. माँ का ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक. अल्लाह अकबर, सिर्फ जगह के लिए माँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਤਾ ਜੀ. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚੀ ਨਾ ਦੇ, ਨਾ ਲਾਲਚ ਭਰਿਆ ਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਦ ਰੱਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਵੀ. IG ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ. ਮਾਂ ਜੀ IG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਵੇਂ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ 3-4 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ. 2 ਮਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਲਏ, ਘਰ ਬਾਰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵੇ. ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. IG ਪੰਜਾਬ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਓ ਦੇ, मैंने कब्जा दुआ दे दी. ये एक माँ इल्तिजाए कर रही है, एक माँ इल्तिजा यानी ये इस मुल्क की माँ है, ये इस कौम की माँ है. ये
इल्तिजाएं कर रही है कि जो मेरा हक है वो तो मुझे दे दो, मेरे अपने सगे बेटे मेरा हक छीन के बैठे हुए, आप 10 साल से आपकी हिम्मत है कि ससुराल में रह के माँ जी को ससुराल लाई हैं, कि किसी ने बात तो नहीं की? वैसे आपको पता है बात कर देते हैं। मेरी सास जो उनसी थी उन्होंने ये वाकया जब देखे, उस वक्त तो अम्मी के हाथ पे और पाँव पे पट्टी भी हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि ना तू मेरी भैन है बुशरा, तू इत्थे ही रह, तू टेंशन ना रह, अल्लाह के ऊपर छोड़ दे। वो फोत हो चुकी हैं अब। मेरी सास का उनका भ्रपन था कि उन्होंने मेरी वालदा के साथ कभी ऊंची नीची बात नहीं की, उन्होंने हमेशा अपनी बहनों की तरह ही ट्रीट किया। उन्होंने, हालांकि मेरा घर ससुराल छोटा है, नीचे मेरी जेठानी और ससुर सब रहते रहे, ऊपर अम्मी मेरे पास एक यानी कि कमरे में इस तरह से रहती रही हैं, लेकिन वहाँ पे अम्मी को इस तरह से, लेकिन इन्होंने वहाँ पे भी फ़ोन कर करके धमकियाँ दी गई, वहाँ पर भी मुझे ससुराल में मेरे जो सा इस तरह से इन्होंने जलील किया। ये भी चाहते थे कि माँ आपके घर से भी निकल जाए। और इनकी पूरी कोशिश थी कि ये हमारी बहन को डाइवोर्स हो, माँ भी जो सी रोड पे धक्के खाए और बहन भी धक्के खाए। ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। आपके खामद को कहा ये अल्फाज? ਹਾਂਜੀ। ये कैसे भाई हैं? शर्म का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है। मैं नहीं समझता कि ये दुनिया में भी कोई इनको इज्जत मिलेगी। एक दिन इनके सामने ये सारी चीज़ें आ जाएगी, इनकी आगे औलादे भी हैं।